Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg, and you are watching my channel. Today, I'm going to discuss the different topics of principles of life. So, what do you know about principles of life? इस चैप्टर के अंदर हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स से पहले एक्सप्लेन किए. उसके अंदर हमने देखा कि how the cell can be divided, how many types of cell we like the cell divide by the mitosis, or they also divide with the help of meiosis. So these are the different modes of cell divisions. So today, the lecture of today is about the genetic code. So what is genetic code? Genetic code is it is a combination of three sequence of three nucleotides. It is a sequence of three base pairs that is present in on the surface of messenger RNA. So this is known as a genetic code. There are about 20 different kind of amino acids that are involved in the protein synthesis. So अगर ये 20 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, ये अमाइनो एसिड जो हैं, तो इसका मतलब है कि इन सभी का अपना अपना एक जेनेटिक कोड होगा. ये जो जेनेटिक कोड है, ये बेसिकली मैंने बताया कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस और अ ट्रिपलेट कोड. और ये जो है खास तौर पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर देखा जाता है, जो कि सिंथेसाइज हुआ है फ्रॉम द डीएनए. दैट मीन ये वो कंडीशन है कि जिसमें डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हुई है इनटू द मैसेंजर आरएनए. सो व्हाट डू यू से अबाउट कोडोन? कोडोन बेसिकली ये थ्री बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, कोडोन कहलाता है. और अगर ये थ्री बेसिक कॉम्बिनेशंस हों ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, तो ये कहलाते हैं एंटीकोडॉन्स. एंटीकोडॉन्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं that are present on the surface of transfer RNA. So transfer RNA is that type of RNA that transfer the amino acid, the transfer the amino acids on the surface of ribosomes where protein synthesis are going to be occur. So that is totally about the codon and anticodon. नंबर ऑफ जेनेटिक कोड्स कितनी तरह की जेनेटिक कोड्स हैं? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जेनेटिक कोड जब बनाए गए तो 16 से, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ माइनस जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 थे, इसलिए ये कहा गया कि माइनस जो जेनेटिक कोड्स हैं वो कम है. बाद में जो है वो टोटल 64 जेनेटिक कोड्स जो है वो डिक्लेयर हुए, और जस्ट फॉर ओनली फॉर 20 अमाइनो एसिड. दैट मीन कि अब जो है ये शो करता है कि देयर मोर देन वन जेनेटिक कोड specific for or specific for a single amino acid. So this is known as the number of genetic codes. For example, अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ तरह के जेनेटिक कोड्स में से एक स्टार्टिंग कोड होता है, एक जो है वो स्टॉपिंग कोड होते हैं. स्टार्टिंग कोड वो होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए की सरफेस पे ऊपर ऐसे कोड जो कि जिनकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट द ट्रांसलेशन प्रोसेस. एंड द स्टॉपिंग कोडॉन्स जो है वो कोडॉन्स होते हैं कि जो जिनके हवाले से कोई भी जिसका कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता. ट्रांसफर आरएनए जो है कोई भी ऐसा ट्रांसफर आरएनए नहीं है जिसके पास इसके एंटी कोड्स हों, तो ऐसे कोडॉन्स को हम स्टॉपिंग कोडॉन्स बोलते हैं. एंड देयर आर द three stopping codons. First one is a UAA, UAG, and UGA. So these are the specialized sequence of a base sequence that are called as the stop signals. So these are called as the stop signals, and this is totally about the stop signals. और next one is the history of genetic code. या genetic code कैसे बनाए जाते हैं ये मैं इसमें हम देखते हैं. तो फिलिप नायरनबर्ग और घरगोविंद खुराना, ये वो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक कोड प्रेजेंट किया. और ये कहा जाता है कि जेनेटिक कोड्स either genetic codes are universal or not. Genetic codes, especially the nuclear genetic codes, are universal. They are universally accepted because the genetic code inside the nuclear DNA of the genetic code, it is present on the RNA of bacteria, and the RNA of you can say that the RNA in case of human, the RNA in case of other animals, they show the similar kind of genetic code on their that messenger RNA. For example, AGA is specified for arginine. That this arginine code not only the code of human, it is also present in case of bacteria. So if it is present more than one kind of animals, that mean
this is the universally accepted genetic codes. But there is a difference. In some cases, we can say that the genetic codes are not universally accepted. Why they are not universally accepted? Because when we compare the nuclear DNA and on the other hand, we compare the mitochondrial DNA. In case of similar organism, for example, in case of humans, you can say that UGA is a stopping codon, stopping nuclear codon, but it is it is a code for tryptophan in case of the mitochondrial DNA. So in that conditions, जब ये दोनों जो है अगर न्यूक्लियर डीएनए लेवल पे देखा जाए तो वहां पर जो है वो यूजीए स्पेसिफिक है स्टॉपिंग कोडॉन के लिए, लेकिन अगर हम देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना डीएनए रखता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, और तो उस डीएनए को देखें तो वो ट्रिप्टोफैन के लिए यूजीए स्पेसिफिक है. सो दैट मीन इन सम केसेस दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. How you can formulate the genetic code, for example, in this condition, we use the first letter, then the second letter, and the third row is the थर्ड लेटर. सो फर्स्ट लेटर जो है आप ये टोटल 16 ब्लॉक्स बनाने हैं, और एक जो फर्स्ट लेटर है उसमें एक तरफ यू सी ए जी लिखना है, फिर ऊपर जो सेकंड लेटर है यू सी ए जी, और जो थर्ड लेटर है उसमें हर ब्लॉक के सामने जो है यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ये सारा लिखना है. और फिर इन तीनों को वन बाय वन कंबाइन करना है, लाइक द फर्स्ट जेनेटिक कोड यू यू, हाउ it can be formulated. It can be formulated by the combination of the first letter U, then the second letter U, and the third letter is U. So triple U. Uh, in this genetic code, for example, here is the stopping codons like UAA, UAG, and UG are the stopping codons. Similarly, here is another code that is called the starting codon. That means this is the code for the starting position of the translation. So that is a protein synthesis. This is totally about the genetic code. Thank you very much. इसके बाद हम next देखते हैं, next topic जो है वो transcription है. What is transcription? Transcription basically it is a synthesis of single-stranded RNA from a double-stranded DNA. That means कि single-stranded RNA का बनाना किससे? Double-stranded DNA से. In the presence of RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme एक ऐसा enzyme है जो इस सारे के सारे mechanism में रोल प्ले कर रहा होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द, इसे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड. ओके, हमारे पास जो है बात कर रहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक्चुअली इट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर टू द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दैट इज द आरएनए, एंड दिस इन्फॉर्मेशन देन ट्रांसलेटेड टू इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेती है. What do you say? How this transcription can be occurred? For the transcription, we must know there is the opening of the DNA. There is a double-stranded DNA that is known as the unwinding of DNA. Unwinding of DNA जो है मुख्तलिफ तरह के enzymes जो है वो unwinding करते हैं, और इसके नतीजे में RNA polymerase जो है उसको एक साइट मिलती है जहाँ पर वो जाके अटैच होता है. दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं उनमें से वो स्ट्रैंड कि जो ट्रांसक्राइब होना है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, जिसपे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होना है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या उसे एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. उसके बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड या उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम के अंदर देखिए तो आपको ये प्रॉपर्ली ये आरएनए पॉलीमरेज नजर आ रहा होगा. दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, and here is the presence of double-stranded DNA, and here is the unwinding. Unwinding means unzipping of the DNA strand. इनमें से एक strand पर ये देखिए RNA synthesize हो रहा है from the 5 and to 3 end RNA synthesis हो रही है. This red colored strand is the RNA strand. So ये जो strand है DNA का, इसे हम template strand या antisense strand बोलते हैं, जबकि इसके opposite strand जो transcription में हिस्सा नहीं लेता उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड या उसे हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैंड्स लाइक द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. सो व्हाट डू यू से अबाउट द नेक्स्ट वन इज द प्रोमोटर साइट. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ ऑल जब जाके बाइंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द डीएनए और द सरफेस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो वहां पर जो है उस साइट को हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट. यानी यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, उस साइट को प्रोमोटर साइट बोलते हैं. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं. रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है. आरएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जैसे ही वो बाइंड करता है अनवाइंडिंग होती है. अनवाइंड होती है, अनवाइंडिंग के बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना सीक्वेंस
डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो जान लेता है और वहां पर जो है वो अपने राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू कर देता है। यानी जितने भी नए न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग है वो सारे के सारे राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो इस वजह से ये राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स की अटैचमेंट करता है। और ये 5 प्राइम टू 3 एंड होता है। पार्ट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दो पार्ट्स में होता है। एक पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता है कोर एंजाइम। डेट मीन दोनों जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलने से हॉलो एंजाइम कहलाता है। Whole enzyme name is the RNA polymerase. So sigma factor actually it is involved the correct initiation of ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का सही आगाज जो है वो सिग्मा फैक्टर करता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की फर्स्ट फेज जिसे इनिशिएशन बोलते हैं वो कंप्लीट होती है, इनिशिएशन हो जाती है करेक्ट इनिशिएशन, तो सिग्मा फैक्टर वहां से रिमूव होता है। जैसे रॉकेट्स की मदद से सैटेलाइट्स हैं वो एयर में जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब वो खास डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं तो रॉकेट्स जो है वो वहाँ उससे सेपरेट आउट होते हैं, उसके पार्ट्स हैं, और देन पीछे जो बचता है वो सैटेलाइट्स वहीं पे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द या किसी भी जो है वो प्लेनेट के इर्द गिर्द। तो ये आदत है बिल्कुल ऐसी कि सिग्मा फैक्टर जो है उसने करेक्ट इनिशिएशन कर दी, उसने ट्रांसक्रिप्शन के अमल को स्टार्ट कर दिया, फिर वो सेपरेट हो गया, पीछे बच गया कोर एंजाइम। कोर एंजाइम वो होता है जो फर्दर राइबोज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ी जाएगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज का वो पार्ट है जिसने राइबोज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाना है और इस लंबी सी चेन बना ली है इधर, जिस फेज को हम बोलते हैं इलोंगेशन रोल प्ले करता है, इलोंगेशन फेज में इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो न्यूली सिंथेसाइज जो न्यूली ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए होता है जो नया बनता है उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और जैसे ही बनता है तो उसके बाद इसकी स्प्लाइसिंग होती है, यानी इसको यहाँ से उतारना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। और ये सेपरेट आउट होने से पहले जरूरी है कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो खत्म हो, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए बेसिकली इस डीएनए के ऊपर एक खास तरह का सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस जैसे ही आता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ मेनी जीसी बेस पेयर्स, बहुत सारे जीसी बेस पेयर्स जो हैं followed by the AT. That means guanine, cytosine base pairs are followed by the adenine, thymine. So when this sequence comes, this is known as a GC hairpin, and there is also called as stop signal. So here is termination occur, and further the synthesis of messenger RNA is stopped, and this is totally about the transcription. Another thing that is very important, transcription bubble. ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जो हियर इज आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है वहां से जो जहां से डीएनए जो है वो अनबाइंड होता है, ये पोजीशन जहां पर डीएनए अनबाइंड होता है, ये जो ओपनिंग है, ये जो बबल है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। जो यहाँ पर देखा जाए तो आरएनए बनने का अमल जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डायरेक्टली न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उस वजह से वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता उस आरएनए के लिए। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब वो न्यूक्लियस में आरएनए बनता है तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स लाइक फॉस्फेटेजेस, लाइक न्यूक्लियसेस जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए है वो उसको खत्म कर सकते हैं, उसके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उससे बचने के लिए मतलब बिफोर एंट्रेंस इनटू द साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए की स्टार्ट पे कुछ सीक्वेंस लगता है लाइक 7 मिथाइल जीटीपी सीक्वेंस, और एंड पे पोली ए जो है पोली एडिनोसिन जो है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस लगते हैं और वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एज सून आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।